Welcome back to the next part. Okay. Okay, so Aradhana, what you're asking that you think both are same, certainty and uncertainty, right? Yes. But certainty and uncertainty are opposite of each other. Certainty means like certain means it is certain, it will happen. Like you know the fixed result. Like say for example, a guest has booked your hotel and he is coming. So he will pay the money, that is certain. Okay. Okay. So uncertainty means a guest is coming on some specific future date and he has not booked your hotel. He said that I will book if I find your room rate suitable for me. So that is uncertain. He is surely coming, but he is not certain that he will stay at your hotel or any other hotel. So that is the main difference of uncertainty and certainty. Okay? Okay. And decision making under risk, it means like risk, everything is taken in under like risk means everything, most decisions are like risk. So like when you decide a room rate of a hotel, so it is still under risk that it will attract the customer or not. So there is a risk that guest will come or guest will reject. But Oh. ultimately you have to give a room rate. And if you take the risk of going in less room rate, your income will be low. And if you are taking high room rate, it may guest may not come. So this is called risk. Okay. I have So- one more question. Yes. If we write like an example that what you are telling, or maybe like our own word, that will be fine in the exam. Like Definitely. I just write a decision making under certainty, and then I write my own example. That will be fine. That Or will I be have fine to because give they it are anything like that. no, it is up to you what type of example you choose because here also the book is itself giving example. So hey, this means you have to give examples. It is up to you. If you give your own example, it will give you more marks. Okay. So or else I could have given the book's example itself. Why I am giving my own example? Because to show you that your own example matter most. Because if you copy the book's example, the examiner will think that Actually, you book are just example is very difficult. very That's difficult that they don't want it very tricky. because they want you to understand. They don't want you to learn. Means they don't want you to memorize it. If you give the book example, they will know that you just memorized it. You don't understand. Whatever it is written, you have just copied. Or most bad is that they might think that you have just had some back door, like copied, or like you are understanding right what I'm saying. Yes. So never try to give the same example because if you give as it is, so they will think that you have just brought some cheats. Okay. Because examples are for understanding. You can give your own example. There is no problem, no issue, and it will be good. So these models of decision making process. So here are the models. This the basic models are the econologic model, or the economic man, the boundary rationality model or the administrative man, and the implicit favorite model or the Grimm's man. So econologic model or economic means the process which is economic. Like if you think about profit or loss or the material process, that process is called economical model, in which
you take the decision by view of the monetary values or assets. Bounded rationality model means rationality. What do you mean rationality? It is also a question. Define rationality, and I think it comes under assignment also. Okay. So rational means thinking. Bounded rationality means ruling. So bounded rationality model means administrative means rationality. Always remember administrative means by rules of how the rules you follow. Okay. The implicit favorite model or a gamesman. So this is most interesting, the gamesman. So gamesman means like in a game there is a favoritism, like he's my favorite and this is my favorite. So these decisions are those decisions which are taken on favoritism, like I would like to do this way, where economics and administration does not come. Okay, it's a different thinking. You're understanding, right? The gamesman. Actually, you can tell me the ecological model just same as you tell me like in personal and organization, like different one, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग definition बता दो आप कि ecological model क्या होता है और economic man क्या होता है, फिर bounded nationality model क्या होता है, फिर administrative man क्या होता है बोल के आप ऐसे करके अलग-अलग समझा दो. नहीं, इकोनॉमिकल और द इकोनॉमिक मॉडल ये दोनों सेम है, नाम हाँ, अलग है, पर लेकिन आप अलग-अलग या करके तो समझा दो तो फॉर्म में अलग एक उसमें करके लिख दूंगी, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि अभी ये जो चीज है थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मेरे को, ये ढंग से समझ में नहीं आ रहा. इकोनॉमिकल मॉडल और द इकोनॉमिक मॉडल, आप इस मॉडल को या तो इकोनॉमिक मॉडल बोल सकते हैं या तो इकोनॉमिक मैन बोल सकते हैं, मींस दोनों सेम ही है. फर्स्ट है द अच्छा सेम है और द बाउंड्री सेम है, तो इसलिए बोल रहा, मतलब इसी को इकोनॉलॉजी मतलब है इकोनॉमिक्स. ओके, मतलब इकोनॉमिक मैन मतलब वो मैनेजर के साथ जो ये इकोनॉलॉजिकल मॉडल लेगा, ये आदमी है और उसका डिसीजन ये होगा, इकोनॉलॉजिक होगा. इकोनॉमिक मैन जो इकोनॉमिक मतलब क्या, इकोनॉमिक मैन मतलब क्या होता है, जो मतलब पैसा बहुत हिसाब करके खर्च करता है. आपको आपके लाइफ में मिला होगा जो पैसा खर्च करने के बारे में 10 बार सोचेगा. आपको ऐसा आदमी मिला है ना, you met some person like that, no? Those who thinks 100 times before even spending 1 rupees also. Okay. So that type of man take this type of decision, economical. वो पैसा के बारे में सोच के decide करेगा. The bounded rationality model, the administrative man. कुछ टाइप होते हैं ना, हीरो टाइप होते हैं जो कमांडिंग होते हैं, आपको काम करने कैप्टन टाइप होते हैं. ओके. जो लीड करना चाहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मतलब राजा जैसा है. और रैशनैलिटी मतलब पावर के बारे में सोच के डिसाइड करेगा. और द इम्प्लिसिट फेवरेट मॉडल और द गेम्समैन, जो मतलब खिलाड़ी है. आपको तो गेम्समैन खिलाड़ी तो पता ही होगा, बोलते हैं ना वो बहुत खिलाड़ी लड़का है, वो बहुत खिलाड़ी है. तो वो मतलब परिस्थिति को देख के, सिचुएशन को देख के वो फेवरेट है, क्या लेने से अच्छा रहेगा, वो देख के वो डिसीजन लेता है. ओके, ये 3 टाइप ऑफ प्रोसेस है. तो यही उसको उसमें बताया गया है. इकोनॉमिकल रेशनल अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज आउटकम्स इन एन ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस. सो मतलब इकोनॉमिकल मॉडल से मतलब वो डिसाइड करो, वो डिसीजन लो जिससे आपका लाभ ज्यादा हो, मैक्सिमम आउटकम्स, मतलब आपका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, यही लिखा गया है. इकोनॉमिक्स वही है, इकोनॉमिक्स के ऊपर ही इकोनॉमिकल मॉडल बना है, जो इकोनॉमिकली सोच के, मतलब इकोनॉमिक्स सोच के जो डिसाइड करेगा कंपनी के लिए, वही इकोनॉमिक मॉडल. और यही लिखा गया है डेफिनेशंस में. और इसका a basic economical decision model is shown in figure 4. The figure suggests the following orderly step in decision making. So ये फिगर बताया गया है कि जो इकोनॉमिकल मॉडल लेता है वो स्टार्टिंग में कैसे कैसे करता है. मतलब फेसेस होता है ना, फर्स्ट फेसेस में क्या होगा, डिस्कवर सिम्टम्स. सो आप अगर फेसेस याद रखेंगे तो फेसेस के मुताबिक ही आपका ये बना सकेंगे. सो सेकंड फेस हमेशा बड़ा होता है और द फाइनल फेस. सो फर्स्ट फेज में वो डिसाइड करेगा, फिर सेकेंड फेज में वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ले जाएगा.
develop set goals or define problem, develop criterion, develop all alternatives, determine all outcomes, select best alternative. Select best alternative में वो इकोनॉमिक्स के मुताबिक सोच के इम्प्लीमेंट करेंगे. So हमेशा जब हम मॉडल को ड्रॉ करेंगे तो फेसेस को याद के ड्रॉ करेंगे. समझ गए? समझ गए. So अच्छा, ओके. So इसी को आपको यहाँ पे उन लोगों ने जब फर्स्ट पीपल हैव द कैपेबिलिटी, कुछ लोगों का कैपेबिलिटी होता है तो मतलब कौन लोग आदमी ऐसा कर सकते हैं. फर्स्ट पीपल हैव द कैपेबिलिटी टू गैदर ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन. पीपल कैन हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सेकंड पीपल कैन मेंटली स्टोर दिस इंफॉर्मेशन फॉर स्टेबल. सो आप खुद से भी सोच के बना सकते हैं कि आदमी कैसे कर सकेगा. ओके ओके. खाली आपको याद रखना है मेन पार्ट इकोनॉमिक मॉडल क्या है, और अगर आपने थोड़ा पढ़ लिया तो पूरी आप याद ही हो जाएगा आपको पूरा, क्योंकि मैंने समझा दिया है आपको जी. कि तो इकोनॉमिक इकोनॉलॉजिक मॉडल और इकोनॉमिक मैन मॉडल एक ही है. हाँ. और इकोनॉमिक्स मतलब आप इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वही है. इकोनॉमिक्स किस लिए रहता है, मतलब आपका जो एक्टिविटी है. इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जो एक्टिविटी से आपको इनकम हो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स. यस. जो काम करके आपको कोई इनकम नहीं होता है वो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं होता है. जो काम करने से आपको कुछ इनकम होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, उसी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है. ओके. और as this is master's and degree or PhD, here you will find other subjects also. Like economics के बाद भी यहाँ पे होगा, इसलिए जो मास्टर डिग्री होते हैं उनको मास्टर बोला जाता है, ताकि उन लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता होगा. जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको भी ये सब उन्हें भी पता होता है. और जैसे पोस्ट ग्रेड ये पॉलिटिकल साइंस का था जो आपको मैनेजमेंट का मैंने बताया. सो आप जितना ऊपर जाएंगे उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स इंक्लूड होगा. मान लीजिए आपने PhD किया तो आपको दूसरा सब्जेक्ट के बारे में भी जानना होगा कुछ हद तक. ठीक है. मींस आपको जैसे जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपका ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स में दूसरा सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते जाएंगे. तो बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल, और इसमें भी आप साइमन को याद रखिए. साइमन यहाँ पे बहुत बार रिपीट होता है. ओके ओके. तो इस नाम को आप याद रखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका निकल ही जाएगा. सो सीक्वेंशियल साइमन ने फेसेस के बारे में क्या बताया था. साइमन ने फेसेस का मॉडल दिया था. थ्री फेसेस साइमन ने बताया था ना, किससे भी है रेशनलिटी. यस. ये यहाँ पे कहीं देखा है साइमन का. इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी. जैसे इंटेलिजेंस मींस मिलिट्री इंटेलिजेंस के हिसाब से थ्री फेसेस में. हाँ थ्री फेसेस में. थ्री फेसेस. तो वही आपका प्रोसेसेस में भी आ जाएगा. तो उसी को इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइसेस. ओके. सीक्वेंशियल टू अल्टरनेटिव मतलब आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या है वो आपको ढूंढना है. मतलब आपको चॉइस आएंगे. अल्टरनेटिव्स मींस चॉइसेस. ओके सोर्सेस. ओके चॉइसेस. और यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक. ह्यूरिस्टिक मतलब वो है वही अल्टरनेटिव आप चॉइस चूज कीजिए जिससे आपको ज्यादा ये हो आउटकम ज्यादा हो. क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है, कैप्टन है, तो जिससे आपका काम ज्यादा निकले आदमियों से वही आपको करवाना है. आपसे लाभ नहीं देखना है, काम परफॉर्मेंस देखना है. यहाँ पे याद रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैन में आदमी से काम कितना होता है वो देखेगा, और इकोनॉमिक में लाभ कितना होता है वो देखेगा. सो यहाँ पे यहाँ पे भी शायद देना चाहिए. हाँ दिया है यहाँ पे भी एग्जांपल. सो tourism management graduates from certain institutes become because in the past such graduates have performed well for the company. So यहाँ पे अगर आपको कि कौन सा आदमी कैसा काम करता है
जैसे होटल के लिए होटल मैनेजमेंट अच्छा रहता है, वो सब डिसीजन आपका रेशनलिटी बेस्ड होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि होटल्स 5 स्टार होटल्स मैक्सिमम होटल मैनेजमेंट वालों को ही प्रेफर करते हैं अपने जॉब देने के लिए, राइट? राइट। तो वो डिसीजन क्या होता है? वो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल के मुताबिक होता है। उस डिसीजन को बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। मतलब उसमें काम के कौन ज्यादा अच्छा करेगा वो देखा जाता है। और सेटिस्फाई ऐसे बोलते हैं ना, सेटिस्फाई मतलब चॉइस को इम्प्लीमेंट करना, मतलब फर्स्ट थर्ड है, मतलब हाँ होटल मैनेजमेंट को ही लेना है। ये काम होता है कि नहीं, किससे होता है? होटल मैनेजमेंट से। मतलब होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट्स होटल जॉब को सेटिस्फाई करता है, उसी को बोलते हैं सेटिस्फाई। ओके, ओके। अल्टीमेटली यही है, मतलब एग्जीक्यूशन। जैसे इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस, मतलब सेटिस्फाई को ही चॉइस पकड़ेंगे, और पे यूज ऑफ हेरिस्टिक को डिजाइन, और सीक्वेंशियल अटेंशन और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब इंटेलिजेंस। तो साइमन को अगर ये याद रखेंगे तो आप बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल भी हो जाएगा। याद रहेगा। तो यहाँ पे आपने जो डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका कुछ कॉम्प्लेक्स करके दिया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसका। ये जो है ये आपका स्टार्टिंग है, डिजाइन है, स्टेबलाइज ऑफ लेवल एस्पिरेशन, ये वाला। सो ये वाला बॉडी है आपका, मिड फेज, डिजाइन फेज, ह्यूरिस्टिक, अप्रेजल, अल्टरनेटिव, एक्ट। फिर लास्ट वाला अप्रेज ऑफ ईज ऑफ इंस्पिरेशन, ये आपका है चॉइस। और ये रिपीट, क्योंकि इस पे डिसीजन प्रोसेस हमेशा रिपीट होता है, याद रखिएगा। और डायग्राम को आप डायरेक्ट सर्कुलर भी बना सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपने सर्कुलर बना दिया तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें रिवर्ट होता है, क्योंकि इसमें रिवर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एक्सेप्टेबल और अनएक्सपेक्टेबल दिया गया है। अगर आप अनएक्सपेक्टेबल और एक्सेप्टेबल हटा देते हैं तो इसको आप डायरेक्टली सर्कुलर बना सकेंगे। और ये बेहलिंग और सेरिसम का है। अब चलते हैं, आपको बाउंड्री रेशनलिटी मॉडल तो आपको याद आ गया होगा, समझ गए हैं ना? जी। या कोई क्वेश्चन है? मैं फिर से समझ सकता हूँ अगर समझ नहीं पाए तो। नहीं समझ में आ गया ये वाला। इम्प्लिसिट और ग्रेम्समैन मॉडल, आप इसमें साइड पे लिख दीजिए सोइलबर्ग। इसको किसने फॉर्मुलेट किया? सोलबर्ग, SOELBERG, बाय सोलबर्ग। आप एक बात याद रखिएगा, मॉडल्स मतलब मॉडल, जब भी मॉडल जैसा वर्ड आता है तो मतलब इसको किसी ना किसी ने आपका दिया है, मतलब किसी ने बनाया है। तो कहीं भी अगर चैप्टर में मॉडल नाम आए तो उसमें आपको याद रखना है कि उसमें आपको किसी राइटर्स का नाम याद रखना ही है, क्योंकि बिना राइटर का कोई मॉडल नहीं होता है, क्योंकि मॉडल इन्वेंट होता जी। है। जैसे मॉडल एक, मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में बनाया था ना मॉडल, इंजीनियरिंग का जैसे एक मॉडल बनाया, तो इंजीनियरिंग का मॉडल को इंजीनियर बनाता है, तो यहाँ का भी कोई रिसर्चर मॉडल बनाता है, जिस मॉडल को आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आर्मी के लिए दूसरा मॉडल का कार होता है जो आर्मी यूज करता है, जैसे टूरिस्ट में काम करने वाले लोग इस मॉडल्स को यूज करते हैं। So as you can say, it is based on the situations, मतलब खिलाड़ी का तरह, मतलब so implicit favorites or stability superior performance candidate, so favorite like situation क्या फेवर करता है। So set goal, identify implicit favorite, compare and rank implicit rejected alternative, identify confirmed candidate,
So here यहाँ पे आप as it is यहाँ पे एग्जाम्पल को ही उसने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। सो यहाँ पे आप डायग्राम में केंद्रित के जगह चॉइस लगा सकते हैं। जैसे जो डायग्राम में जैसे प्रॉब्लम को सिलेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन लेने के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहना चाहिए। सेट गोल्स, आपको पहले सेट गोल्स मतलब आउटकम क्या चाहिए, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर आइडेंटिफाई इम्प्लिसिट फेवरेट, इम्प्लिसिट फेवरेट मतलब क्या क्या चॉइसेस है आपके सिचुएशन को देख के। मान लीजिए सैलरी कम है इसलिए आपके स्टाफ रिजाइन कर रहे हैं, ये हो गया सेट गोल। ओके, तो आइडेंटिफाई इम्प्लिसिट फेवरेट, इसका मतलब है आपको चॉइसेस क्या क्या है। तो चॉइसेस ये है, आप देख लीजिए कि जो काम पे नहीं आता है उसको डिसिप्लिनरी एक्शन ले, सैलरी बढ़ा दे, या कोई दूसरा तरह के बेनिफिट्स दे। तो ये 3 हो गया आपका इम्प्लिसिट फेवरेट। कंपेयर एंड रैंक इम्प्लिसिटली रिजेक्टेड अल्टरनेटिव, तो मतलब उसमें कंपेयर कीजिए कौन सा वाला ज्यादा सुइटेबल है। तो आइडेंटिफाई कन्फर्मेशन कैंडिडेट। सो कन्फर्मेशन कैंडिडेट इसमें वो वाले आएंगे जो मतलब किस बात के लिए निकाल दिया। इस पे कैंडिडेट होगा आपका कम सैलरी। ओके, मेन प्रॉब्लम क्या है, कम सैलरी। स्टेबलाइजेशन रूल और क्राइटेरियन। सो अभी इकोनॉमिकल मॉडल से इसलिए डिफाइंड होता है कि यहाँ पे आपका रूल आ जाता है। ये रूल ये होता है कि मतलब क्या वाकई में आपको इतना स्टाफ चाहिए, या स्टाफ बिना होने से भी आप चल जाएंगे। फिर उसके बाद अनाउंस डिसीजन, उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया और डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया। डिसीजन प्रोसेस में आपको सिर्फ डिसीजन अनाउंस करना ही नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी होता है। जैसे आगे आपने पढ़ लिया था आगे के यूनिट्स में, डिसीजन कब सक्सेसफुल होता है, जब इम्प्लीमेंटेशन होता है। फेसेस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे भी प्रोसेस में भी आपको फेसेस याद रखना है। ओके, तो हमेशा याद रखिए मिडिल वाला बड़ा होता है। जैसे सेकेंड फेज हमेशा बड़ा होता है, और फर्स्ट फेज और लास्ट फेज हमेशा एक ही होता है। लास्ट फेज इम्प्लीमेंटेशन होता है, और फर्स्ट फेज हमेशा आइडेंटिफिकेशन होता है। बाकी जो भी होता है सब बीच वाले में होता है। जैसे आपका जिंदगी में भी, जब बचपन का फेज में आप कुछ नहीं करते हैं, और मरने के टाइम भी कुछ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं आप क्या करते हैं, जब आप हेल्थी रहते हैं, यंग होते हैं थोड़ा सा, तभी आप जो भी करते हैं, तभी तो उसी टाइम होता है ना आपका जिंदगी का मैक्सिमम चीजें, है कि नहीं? जी। तो उसी को अगर आप याद रखेंगे तो आप पूरा का पूरा, जैसे आधा का आधा आपने मॉडल तक निकाल लिया। So technique used in defined steps of decision making. So इसमें भी आपका, आपने ऊपर में क्या क्या टेक्निक यूज किया, जैसे आइडेंटिफाई क्या क्या नहीं, जैसे क्या प्रॉब्लम है, आपके ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि नहीं। हाँ, तो आगे के जो राइटर्स ने जो जो यूज किया उसी को बताना है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, तो उसमें होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये लिख लीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। उसको किसने, हु डेवलप्ड इट, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग। जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर आपको
ब्रेनस्टॉर्मिंग का भूल गए कि किसने लिखा है ये वाला, तो आप गाना याद कीजिए, ऑसबॉर्न, जो आपका इंग्लिश म्यूजिक साइंस में आता ही रहता है, ऑसबॉर्न का गाना। सो आप अगर टाइटल भी लिख देंगे बाय ऑसबॉर्न तो भी सही होगा, क्योंकि कोई कोई सिर्फ टाइटल ही लिख देते हैं, द ब्रेनस्टॉर्मिंग वाज डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न। ये भी वन टाइप ऑफ राइटिंग है, ऑसबॉर्न, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। ओके, पूरा नाम है उसका एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, बट शॉर्ट में आप उसका टाइटल भी लिख सकते हैं जैसे ऑसबॉर्न। अच्छा, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग इज लाइक डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड। ओके ओके, सो दिस इज अ टेक्निक। ओके सो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये यूज होता है। क्रिएटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या, ब्रेन में ढेर सारा आइडियाज घुसाना। ओके जैसे आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप सबसे पूछते हैं कि नहीं मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं, तो लोग आइडिया देते हैं नहीं कि नहीं आप ये कीजिए, ये अच्छा होगा। तो ये क्या होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड। ओके increasing creative thinking. Brainstorming means increasing creative thinking. And four rules of brainstorming is criticism is prohibited, freewheeling is welcome. Means जितना भी आप जो भी सोचे आप सोच सकते हैं। क्वांटिटी इज वांटेड, मतलब जितना ज्यादा आपको ये मिले, आइडियाज मिले उतना अच्छा, मतलब जितना आदमी आपको एडवाइस करे उतना अच्छा है। कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट आर सॉल्व। मीन्स किसी ने आपको आइडिया दिया तो उसको आपने इम्प्रूव कर लिया, आपने खुद से भी उसमें कुछ जोड़ लिया, और दो आदमियों ने आइडिया दिया तो दोनों का आइडिया को ज्वाइन करके आपने एक नया आइडिया निकाला, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब कोई आपको गाली नहीं दे सकते हैं, या कोई आपका, आप दूसरे को गाली मत दीजिए। जो भी आपको आइडिया दे रहा है आप ले लीजिए या आइडिया दे दीजिए, उसी के बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, ओके आइडिया शेयर करना, शॉर्ट फॉर्म में ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आइडियाज लेना या शेयर देना। सो ऑल्टरनेटिव्स देखिए, टेक्निक्स इन डिफाइंड स्टेप्स। स्टेप्स मैंने बोला था ना, एवरी स्टेप्स में डिसीजन मेकिंग है, तो स्टेप्स मतलब फेसेस। सो तीन फेसेस आपने देखा था, तीन फेसेस बताए थे। सो पहला फेसेस में क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं। तो फर्स्ट फेसेस पे डिफाइंड स्टेप्स क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट टेक्निक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्टरनेटिव्स निकालने में टेक्निक्स होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट फेज पे। फिर उसके बाद आएगा आपका सिनेप्टिक्स। सिनेप्टिक्स किसने लिखा बनाया है, विलियम जे गॉर्डन। अब शॉर्ट में लिख दीजिए गॉर्डन। सिनेप्टिक्स वाज डेवलप्ड बाय गॉर्डन। ओके सिनेप्टिक्स सीन हमेशा याद रखिए, सिनेप्टिक्स को दो टर्म्स से जोड़ा गया है। सिंक मतलब जोड़ना। ओके जैसे सिंक्रोनाइज होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में सिंक बोलते हैं, उसी को सिन। एक्टिक्स मींस टैक्टिक्स। एक्टिक्स मतलब होता है टेक्निक्स मींस पॉलिसीज, तरीका। सो तरीका। सो सिनेप्टिक्स मतलब जोड़ना, तरीका जोड़ना, मतलब फिटिंग टुगेदर ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स, मतलब दो तरीके हैं, दोनों तरीके को जोड़ के, दोनों तरीके को जोड़ के करेंगे, सो उसी को बोलते हैं सिनेप्टिक्स। सो ये एक टेक्निक है, मेथड्स। तो डिफरेंट टेक्निक्स। तो सिनेप्टिक पहला होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग और दूसरा हो गया सिनेप्टिक्स। तो उसके बाद आ गया नोमिनल ग्रुपिंग। सो नोमिनल ग्रुपिंग डेवलप्ड बाय, देखिए, डेलबेक एंड एंड्रयू वैन डीवेन, या डीवेन भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एंड डेलबेक एंड वैन, DELBECQNVEN। ओके सो नोमिनल ग्रुप मतलब, नोमिनल ग्रुपिंग मतलब, नोमिनल मतलब क्या होता है, कम। नोमिनल का मीनिंग समझ लीजिए। नोमिनल मतलब होता है नाम का ही, सिर्फ नाम का ही। नोमिनल मतलब ऐसे बोलता है ना, नोमिनल लीडर, नाम का ही लीडर है लेकिन असली काम तो करता ही नहीं है। नॉमिनल कुछ नॉर्मल भी बोलते हैं क्या इसको, कि बस नहीं, नॉमिनल अलग है या नॉर्मल अलग है? नॉर्मल अलग है, नोमिनल अलग है।
अच्छा, नॉमिनल ग्रुपिंग मींस लेस ग्रुपिंग। नाम का ग्रुपिंग, जैसे बोलता है ना वो नाम का है, काम का नहीं। ओके, वो नाम का बोलते हैं नॉमिनल, नाम का ग्रुप है। जस्ट अ बाकी नेम से। जैसे मैंने, यस, सो जैसे नॉमिनल ग्रुपिंग मतलब आगे का क्या था, ग्रुप था। जैसे कोई कोई आइडिया देता है, आप ले लीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा डिसीजन लेने में। सो इसमें नाम का ही आपको दूसरे का हेल्प मिलेगा, जो भी करेंगे आप खुद ही करेंगे। दिस इज द ओके, टेक्निक, ओके, दिस इज द मेथड। सो here uh, so in nominal grouping, creative thinking helps. It is like creative thinking. अगर आपका खुद का creative thinking है तो उसी से आप डिसीजन ले लीजिए। ओके, so यही है। उसके बाद होगा है आपका सेकेंड फेज, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन। आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको जो डिसाइड करना है कौन सा आप चॉइस लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। ओके, तो उसमें आपको उसमें आप उसमें भी आप रीजनेबल एंड अनरीजनेबल वे से आप डिसीजन ले सकते हैं। इसमें टेक्निक्स नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इवोल्यूशन और सिलेक्ट ही करना है, ओके, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, इवोल्यूशन और सिलेक्शन करने वाला है। और इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन, सो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई डिसीजन कोई टेक्निक का जरूरत नहीं होता है। मतलब इसको ऑर्डर को एक बार आपने ऑर्डर दे दिया तो उसको बोलने के लिए आपको कुछ टेक्निक चाहिए क्या? एक कमांडर को आपने मुंह से बोल दिया हो गया, ठीक है नहीं? राइट। तो इसमें से बोल यही आपको लिखना है। इम्प्लीमेंट लास्ट वाला जो फेसेस है जैसे आइडेंटिफिकेशन, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, सो इसमें टेक्निक नहीं होता है। सो फर्स्ट वाले में ही आपको टेक्निक यूज करना पड़ता है। नाउ ठीक है, अभी एक्चुअली ग्रुप और इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप मैंने बताया था। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग मतलब जो एक पर्सन डिसीजन लेगा। अभी आता है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग। हाँ, तो इंडिविजुअल मतलब है जो इंडिविजुअल आदमी से डिसीजन लेता है तो उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिसीजन। और जो ग्रुप डिसाइड करता है, ग्रुप मिल डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ओके, ग्रुप डिसीजन, राइट। तो ये इस पार्ट का ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, आपको ये थोड़ा मीनिंग लिखने से ही हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो अकेले डिसीजन लेने में क्या एडवांटेजेस है और ग्रुप में मिलकर डिसीजन लेने से क्या एडवांटेजेस है, यही आपको लिखना है। सो यही क्वेश्चन में आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ओके, सो इसमें आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ये आता है एग्जाम में। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग। हाँ, ये इसके तो बाद अब समझ के आई। हाँ, तो जैसे बोर्ड होता है ना, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। और जो मैनेजर ने डिसीजन लिया तो होता है सिर्फ मैनेजर का इंडिविजुअल डिसीजन। उसके बाद इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मतलब है इफेक्टिव है कि नहीं डिसीजन मेकिंग, मतलब आपने डिसाइड कर पाएंगे नहीं, सिर्फ मतलब सोचने से ही नहीं होता है। मतलब जो फर्स्ट टाइम बोला था जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, और उसमें जो बोला था डिसीजन शुड बी इफेक्टिव नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिव, राइट? रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने पढ़ा था, तो वही होता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब आपने जो सिलेक्ट किया है, मतलब टाइम पे डिसीजन लिया कि नहीं। मतलब आप ऐसा तो नहीं कि डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे करूं या ना करूं,
मतलब कंफ्यूज नहीं है। जैसे राहुल गांधी को हंसते हैं कि सॉरी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर्स को बारे में बोलते हैं कि ओपोजिशन क्रिटिसाइज करते हैं कि डिसाइड कर पाए या ना कर पाए, लेकिन रियल मैंने ऑलरेडी इस ऑनलाइन में बोल ही दिया है, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। राहुल गांधी भी ओपोजिशन को क्रिटिसाइज करते हैं, ओपोजिशन भी राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब डिसीजन नहीं ले पाया है कि नहीं। सो वो वाला नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीजन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ डिसीजन। तो इसमें आपका डिसीजन इफेक्टिव कब होगा, तो इसके बारे में आप एल्बिंग के बारे में लिख सकते हैं। एल्बिंग ने आइडेंटिफाई किया है, ये आपका पर्सनल के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा हमेशा। याद रखिए, आप जैसा पर्सनल होंगे वैसा ही आप इफेक्टिव डिसीजन कर सकेंगे। सो एल्बिंग ने भी यही बताया है, मैंने भी यही बताया है आपको। और लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो दूसरा नहीं बताएंगे, शायद आप बुक में नहीं मिलेगा, कि ये आपका जो प्रोफेशनल मैनेजर का टास्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क है, तो उसमें जो लिखा था डिसीजन एंड थिंकिंग में फर्क है, थिंकिंग ही करने से नहीं होगा, डिसाइड ही करना होगा। तो उसी को आप अगर एक्सप्लेन करेंगे एल्बिंग के नाम से तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। किनके नाम से? एल्बिंग ओके। बिकॉज इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एल्बिंग ने किया है। आप लिख दीजिए कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग वाज रिसर्च्ड बाय एल्बिंग इन 1978 अकॉर्डिंग टू हिम। फिर अपने मन से लिख दीजिए कि एक मैनेजर को कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक मैनेजर के ऊपर ही बात होगा कि उसका ऑर्डर कितना लोग फॉलो करता है। अच्छा, जो मैनेजर का सबसे पहले यूनिट 1 में था, मैनेजर्स के ऊपर ये एल्बिंग ने किया है। देखिए, जब कोई रिसर्च करता है ना तो डाटा कलेक्ट करता है, तो एल्बिंग ने वही डाटा को कलेक्ट किया है। जैसे आपको मैंने डाटा दे रहा हूँ, टॉपिक्स दे रहा हूँ, तो आपने डाटा कलेक्ट किया कि नहीं, लेकिन आपने बनाया आपने है तो नाम आपका होता है ना। डाटा किससे लिया उसका तो नाम नहीं होगा। जिसने आपको डाटा दिया उसको तो पीएचडी नहीं मिलेगा ना, पीएचडी किसको मिलेगा? आपको ही तो मिलेगा। या तो रिजर्वेशन किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, राइट। तो एल्बिंग ने डाटा दूसरे से लिया है, लेकिन नाम हो गया एल्बिंग का। एल्बिंग का ओके। तो डाटा एल्बिंग का नाम देके आपको खुद का डाटा भरना है बस। लेकिन याद रखिए, डाटा भरने का तरीका है कि आप एक पर्सनालिटी के ऊपर फोकस कीजिए। एक मैनेजर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मैनेजर को आइडियाज लेना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि सोचना चाहिए ज्यादा टाइम। इसमें सोचना नहीं है, करना है। इफेक्टिव मतलब इफेक्ट मतलब काम। थिंक लेस वर्क मोर। ओके। तो मेरे साथ क्लास में रहने के लिए शुक्रिया। और हाँ, जो मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं क्लासेस का, वो सब आप देखिए, रिपीटेडली देखिए, ताकि आपको समझ में आए। और अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसे भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी क्लास लेने के लिए बोलेगा। मेरे कोई फ्रेंड है, मास्टर्स नहीं कर रहे, वो सब जॉब कर रहे हैं, वो कह रहे पढ़ाई अब हमारी बस की नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप खुद देखिए यूट्यूब चैनल। और मेरा अगर कोई कह रहा होगा मैं बता दूंगी। और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है? आपका किस नाम से है? आपका जो नाम है वो इसी नाम से है यूट्यूब में भी? इसी नाम से है, तो वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे मेरे क्लास। ओके, फिर तो ठीक है। ओके, आपको यूनिट 4 आपने क्लास नहीं किया था तो यूनिट 4 का भी वीडियोस है। यूनिट 4 का मैंने हाँ, मैं वही किया बोल रही थी आप। हाँ ठीक है, मैं वो उससे देखूंगी। यूनिट 4 ओके। थैंक यू so much. You too. Have a good evening. Bye.